था वो वापस मिल जाएगा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुनहरी दौर चल रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान जब बना था और उसके बाद जो मामला थे 60s के 50s के, मुझे लगता है वो तो बहुत हमारा सुनहरी वक्त था, वो हमारा सुनहरी दौर था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सवाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ग्राविटास का पाकिस्तान रन आउट ऑफ कुकिंग गैस। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है ग्राविटास पाकिस्तान रन आउट ऑफ कुकिंग गैस ऑयल टू रन इट्स ट्रेन। China's financial capital is collapsing, but its best friend is collapsing all over. No points for guessing, I'm talking about Pakistan. Such is the dire state of this country that its government is failing to provide its people the most essential of commodities, like cooking gas. Look at this video. What do you see? These plastic bags have cooking gas. People are storing LPG in plastic bags because there aren't enough gas cylinders. If you follow this show daily, then you already know that there isn't much gas left in Pakistan. Dr. Asim Hussain, the country's former petroleum minister, has said that it's almost certain that natural gas will be exhausted in Pakistan by next year. In Karachi, people are complaining about no gas. Those who still have supply say that the pressure of the gas coming into their kitchen is far too low to cook the meals properly. And these problems are not limited to the low-income neighborhoods, mind you. They have spilled to the affluent areas of Karachi as well. Local media reports saying that families are being forced to replace breakfast with tea and biscuits because there is not enough gas to boil an egg. It's something most of us will not be able to relate to. But this is the reality of Pakistan. Such is the desperation that gas is being sold illegally in these plastic bags. And why is there a gas crunch in Pakistan, you ask? Because its gas reserves are shrinking. Reports say no new reserve has been discovered in 20 years. Balochistan is expected to have reserves, but which country or company would want to invest in digging a troubled province? Now, what do countries that don't have enough money do? They buy. But buying requires money, and Pakistan has none. Its foreign exchange reserves are dwindling at a time when energy prices are sky high. And the result is this: the government's incompetence is pushing people to the edge. How often do you see images like this coming out from a country? When they do, it's safe to say the country's government has failed. Very soon, it will also fail to keep the railways running. Reports say Pakistan's railways only has enough oil to last 2 days, meaning come Thursday, the trains running in Pakistan may be forced to pull the brake and switch off the engine. If you think something like this will be unprecedented, I urge you to think again. Not too long ago, Pakistani railway was left with only 1 day's oil. And guess what it did? Pakistan was forced to stop goods trains, especially those running between Karachi and Lahore. Employees are getting their salaries almost 20 days after the payday. In December, train drivers had to stop the trains in protest because their salary was credited late. Finally, the department was forced to pay drivers in 2 installments. The Pakistani railway has collapsed. Officials, in fact, saying the department is mirroring the situation of the government. Earlier today, Pakistan announced that markets in the country would be closing sooner than usual.
Same with wedding halls, because there is no energy to keep them running. So shops will have to pull down their shutters at 8:30 p.m. and wedding halls will have to shoo out the guests by 10 p.m. tops. Pakistan will soon be asking the government employees to work from home just so that the government buildings can save energy. All of this is part of Pakistan's National Energy Conservation Plan. The country's defense minister urged the people to embrace the measures, adding that the government is leading from the front. How exactly? He says no lights were on during the cabinet meeting today. That's a result of poor planning. Pakistan's government has failed to keep the lights on, and now its legitimacy is hanging by a thin thread. When I said Pakistan is collapsing all over, I meant its economy is just as bad as its political and security situation. Pakistan could be on the verge of splitting again. The Tehreek-e-Taliban has taken control of parts of territory in Pakistan's western frontier region. And what's more, the TTP has also announced a parallel government. This government has a cabinet, a defense ministry, a minister of education, even economic affairs. Which areas does the TTP control? Peshawar, Malakand, Mardan, Dera Ismail Khan, Banu, Kohat. Yesterday, the Taliban leader, Ahmad Yasir, decided to troll Pakistan. He shared a photo of Islamabad surrendering to India after the 1971 war. It was a harsh reminder of the last time Pakistan had split and Bangladesh had become independent. The photo was a reminder of the déjà vu that's likely to follow soon. A déjà vu that we coincidentally happened to have told you about at length yesterday. We are now available in your country. Download the app now. Get all the news. जी जनाब, इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें इसी तरह की खबर थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी और डिटेल थोड़ी सी डिफरेंट हो गई कि हालात जो हैं ना सिर्फ गैस तक महदूद हैं, यहाँ पे बहुत कंडीशन सियासी कंडीशन जो है और मुल्क की जो यूँ समझ लें कि एक तरह से एक सालमियत होती है, एक मुल्क की बका होती है, एक मुल्क का वक़ार होता है, बात तो वहाँ तक पहुँची हुई है। अच्छा, मैं मतलब अक्सर मैंने पॉलिटिक्स के हवाले से कहीं भी वीडियो देखी है, कोई भी तजिया निगार होते हैं जो बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ पे, वो पॉइंट नोट करते हैं कि यार ये कब हुआ और उसके बाद ये हुआ और उसके बाद ये हुआ, तो उन तीनों को लिंक जोड़ते हैं वो लोग कि यार अच्छा तो इसका मतलब ये था, अच्छा उसने यूँ कहा था तो इस वजह से कहा था। 2-4 दिन बाद कुछ और चीज़ होती है, 3-4 दिन बाद कुछ और चीज़ होती है, तो लोग लिंक जोड़ के बाकायदा एक नक्शा खींच लेते हैं कि ये प्लान था, ये यूँ समझ लो कि एक तरह से ये करना था। अच्छा, निशाना भी किस चीज़ को रखा गया? कोई एक खाने पीने की चीज़ होती ना, कोई एक खाने पीने की चीज़ होती, उसकी शॉर्टेज हो जाती। पहले ये छोटी सोच थी शायद इनकी कि बाज़ दफ़ा आटा गायब हो जाता था, बाज़ दफ़ा चीनी गायब हो जाती थी, आवाम थोड़ी सी मुश्तइल हो जाती थी। यार आप जब खाना बनाने का असल चीज़ ही गायब कर देते हो, जब खाना बनाने की असल चीज़ ही ख़त्म हो जाती है, तो ये एक इनफ हो जाता है। यानी कि आपके पास साजो सामान मौजूद हो, आप उसको बना ना पा रहे हो, तो आवाम कितनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगी। अच्छा देखो, आप नोट करें कि पहले आवाम को मुश्तइल किया जा रहा है, आवाम के अंदर इतनी डिप्रेशन पैदा की जा रही है बाकायदा चीज़ों की कमी करके। इन फ्यूचर अगर कोई कहता है एकदम से कोई, हाँ देखें है तो इस्लामी मुल्क, हमने पिछली भी वीडियो में किसी में जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग मौलवियों को पसंद करते हैं, मौलवियों की हुकूमत को पसंद करते हैं, उसको सिर्फ ये कहते हैं कि इस्लामी कानून के नाम पे मौलवियों को हुकूमत। लेकिन जब आवाम इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगी, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी, तो कल को कोई ऐसी हुकूमत ऐलान करती है, बल्कि कर दिया उसने, जब वो आगे बढ़ती है तो लोग कहेंगे बिस्मिल्लाह, हम तो भूख मर रहे हैं भैया, आप तो हमारी आखिरी उम्मीद बन के आए हो, आप तो ज़बरदस्ती आए हो, इसका मतलब है आप ही आप हो, यहाँ तो कुछ नहीं होना हमारे साथ। तो कल फिर क्या होगा? मतलब कहाँ हम जा रहे हैं, मतलब किस दौर में हम किस तरह जिएंगे, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे जब इस तरीके से एक और गवर्नमेंट आ जाती है जो बिल्कुल ही एक तरह से यूँ समझ लो कि किसी लड़की का घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा, किसी लड़की का बग़ैर
उसके क्या कहते हैं अपना किसी के साथ या किसी के उसके तालीम ख़त्म हो जाएगी ख़वातीन की। मतलब तालीम मतलब हम मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या शायद बहुत पीछे जा रहे हैं, मतलब हम बहुत पत्थर के दौर में चले जाएंगे। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल, और जो लिंक बन रहे हैं, जो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं और बहुत ख़तरनाक वीडियोस देख रहे हैं। अब भी तक जितने भी बुरे हालातों, कोई एक चीज़ उम्मीद की दिखे तो इंसान थोड़ा उम्मीद हो जाती है, लेकिन यकीन करें कोई उम्मीद नहीं दिख रही। आने वाला हर दिन पहले से बुरा, आने वाला हर दिन पहले से बुरा होता जा रहा है, जिसकी वजह से सोच के इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं कि आने वाला वक्त किस तरह से होगा। आज एक शख्स ने बहुत खूबसूरत बात की है कि अक्सर उससे मैं जैसे ही सलाम करता हूँ, पूछता हूँ कि कैसी तबीयत है, क्या हाल है, वो कहता है जो गुज़र गया वो अच्छा है। वो कहता था जो गुज़र गया वो अच्छा है, आने वाला उससे बुरा होगा। वो कहता मेरे से पत्थर पे लकीर लगा के लिख लो। बाकायदा उसका उठना बैठना हर तरह के बड़े से बड़े लोगों में था। उसका उठना बैठना बड़े से बड़े लोगों में जो अंदर तक के मामला देखते हैं, रखते हैं, जिनको हर चीज़ का पता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तज्ज़िया निगारियाँ हो चुकी होती हैं। तो वो कहता है जो गुज़र गया वो अच्छा है। उसके अलावा वो नहीं कहता था। वो कहता था हर आने वाला दिन जो गुज़र गया वो बस अच्छा है। मैं उस वक्त समझता नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि जो वक्त गुज़र गया था ना, जो गुज़र गया है वो अच्छा है। आने वाला वक्त पहले से बहुत बुरा होता जा रहा है। अच्छा, मुझे इस वीडियो से एक बात याद आ रही है कि इंडिया के हवाले से जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था और इंडिया ने अंग्रेज़ों को भगा दिया था और उसके बाद आज़ादी हासिल की थी और फिर पाकिस्तान उनसे सेपरेट हुआ था, तो उस वक्त किसी अंग्रेज़ ने ये बात कही थी कि इंडिया का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। 10 साल का कहा था कि 30 साल का, कि 20 दोनों का कहा था, ऐसे ही कुछ कहा था। इंडिया का कहा था कि इंडिया का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, इंडिया नहीं चल पाएगा। खैर 75 साल से भी ज़्यादा हो गए और इंडिया माशाल्लाह से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहा है और आगे जो दौर है वो बहुत ही सुनहरी दिख रहा है। इंडिया का गोल्डन टाइम दिख रहा है मुझे। और जैसे कि मैंने कई वीडियो में कबल भी बोला है कि इंडिया का जो एक खोया हुआ स्टेटस है, वीडियोज़ को देखकर, चीज़ों को देखकर, और जैसे कि वाकई ऐसे ही है कि इंसान चीज़ों को देखकर बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक नक्शा खींच लेता है, एक चीज़ के बारे में जज कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है खोया हुआ जो स्टेटस था वो वापस मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत सुनहरी दौर चल रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान जब बना था और उसके बाद जो मामला थे 60s के 50s के, मुझे लगता है वो तो बहुत हमारा सुनहरी वक्त था, वो हमारा सुनहरी दौर था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सर्वाइव कर पाना नामुमकिन सा लग रहा है, मुझे वाकई नामुमकिन सा लग रहा है। मुझे नाउम्मीद नहीं होती, मैंने पहले भी वीडियो में कहा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो, 2 प्रॉब्लम हो, 3 प्रॉब्लम हो तो इंसान लड़ ले, लेकिन जब आपके घर में ही फसादात शुरू हो जाए, जब आपके सामने ही एक नई पार्टी शुरू हो जाए, खड़ी हो जाए, और जब आप खुद ही तफरकों में बढ़ जाओ, टुकड़ों में बढ़ जाओ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद की किरण हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि फिर आपकी बका मुमकिन है। टीटीपी के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि तालिबान के हवाले से बहुत बुरा समझा जाता था हमारे यहाँ। मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं उनको अच्छा नहीं समझती थी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको सपोर्ट करते थे। बेसिकली मैंने देखा पेशावर के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, कोहाट के लोग बड़े सपोर्ट करते हैं, मर्दान वगैरह के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इनको, और कहते हैं अच्छा है, पर्दे का हुक्म देते हैं, शरई कानून लेकर आते हैं, और अच्छा है, वही बातें करते हैं जो कुरान और सुन्नत में है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उनको आना चाहिए, उनकी हुकूमत को होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने हालात हमारे ऊपर गुजर गए, या हमने जो चीज़ें फेस कर ली हैं ना शहबाज शरीफ की हुकूमत में, अब मुझे इनके बरक्स, इनके अपोजिशन में, मैंने पहले भी कहा था कि एक भिखारी भी खड़ा होता हुआ दिखता है, एक फ़कीर भी खड़ा हुआ दिखता है, एक बदतर से बदतर, नाकिस से नाकिस इंसान भी खड़ा हुआ दिखता है, तो मैं यकीन करें उसको वोट देने के लिए तैयार हूँ, मैं यकीन करें उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं यकीन करें उसकी हुकूमत को, उसके पावर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ कि शायद ये कुछ भला कर दे। देखिए हम अक्सर ये कहते हैं कि यार वो ज़बरदस्ती लागू करते हैं कानून, वो लड़कियों के हुकूक के बारे में बात नहीं करते, पर्दा ज़बरदस्ती लागू करते हैं और शरई कानून ज़बरदस्ती लागू करते हैं, तालीम के मामलात को ये कहते हैं स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, घर में बैठो, पर्दा करो, अच्छे से ग्लव्स, ये सॉक्स, ये वो। तो मैं ये कहूँगी ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, ये सब इंसान फॉलो कर ले अगर उसके पेट में 3 टाइम की रोटी हो। लेकिन अगर एक हुकूमत आपको खाने से, यानी कि बेसिक
चीज़, बेसिक अशिया है कि आपका पेट भरना चाहिए, आपकी भूख मिटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, फिर उसके बदले में आपको कुछ भी करना पड़े। तो आप सब एग्री करते हो, क्योंकि भूख से बड़ी चीज़, भूख से बड़ी हकीकत मैं ये जानती हूँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अगर उसके बरक्स कोई और गवर्नमेंट आती है जो हमसे वादा कर लेती है कि हम 3 टाइम रोटी देंगे आपको, आप ये फॉलो करो, हम कहेंगे खुशी खुशी हमें मंजूर है, आप 3 टाइम हमें खाना दे दो, हमें रोज़गार दे दो, हमें सुकून से हम अपने घर में बैठ के खाना खा सकें, सुकून से हमारे घर में गैस हो। सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है गैस का, इतना बड़ा इशू चल रहा है, मतलब मैंने इतनी अफरा तफरी, इतनी बेबसी, इतनी लाचारी, इतने बुरे हालात जब से मैं पैदा हुई हूँ ये मैंने पहली बार देखे। मैंने इससे पहले कभी पाकिस्तान में ये अफरा तफरी नहीं देखी कि लोग मरने को तैयार हैं रोटी के लिए, लोग मरने के लिए तैयार हैं, अपनी जानें हथेली पे रख रहे हैं, ये मार रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे से, जैसे वो जानवरों वाला कानून नहीं होता कि वो जा रहा है फला बंदा, उसके हाथ में थैलियाँ हैं तो बंदा उसको मार रहा है, मार के उससे छीन रहा है और अपने घर में वो थैलियाँ लेकर जा रहा है और खा रहा है। मतलब मुझे ऐसी सिचुएशन ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शायद हम इंसान हैं, ऐसा लग रहा है वाकई हम जानवर बन चुके हैं सिर्फ अपने भूख के हाथों। बहुत बुरी हालात, मुझे ऐसा लगता है बहुत वायलेंस होने वाला है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट होने वाला है, बहुत बर्बादी होने वाली है, बहुत कत्लो गारत होने वाला है, क्योंकि देखिए मरता क्या ना करता, सब करेंगे, आवाम सड़कों पे आएगी, आवाम वाकई सपोर्ट करेगी। इनके बरक्स कोई भी हुकूमत होगी ना, बदतर से बदतरीन, मैं यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, आवाम उनके हाथों में पावर दे देगी, आवाम कहेगी कि कुछ भी होता है। प्रशांत जी की वीडियो थी और जिसमें नौकरी के लिए लड़के आए हुए थे, एक छोटा सा क्लिप था, मैं मतलब आंखों से हटता नहीं है वो, कि ऐसा लग रहा था कोई मैच चल रहा है और आवाम पब्लिक देखने के लिए बैठी हुई है। ये सारे 1600 जॉब्स आई थी शायद, पता नहीं कितनी जॉब्स थी, उन जॉब्स के लिए पुलिस की जॉब्स थी। एक वक्त था कि पुलिस की जॉब को लोग पूछते भी नहीं थे, यार पुलिस की जॉब में नहीं जाना रिस्क है, पुलिस की जॉब की तो बेइज्जती है, पुलिस वालों को तो लोग गालियाँ देते हैं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट हर चीज़ को लेकर फेल हो चुकी है, हर चीज़ को लेकर नाकाम हो चुकी है। बिजली वो हमें नहीं फराहम कर पा रहे हैं, गैस वो हमें नहीं फराहम कर पा रहे, रोज़गार वो हमें नहीं दे पा रहे, इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई काम वो नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा वो कर क्या रहे हैं, वो जो गद्दी संभाल कर बैठे हैं, वो जो कुर्सी संभाल कर बैठे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। हमसे बिल्स के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, हमसे टैक्स के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, हमसे हर चीज़ के नाम पे हमें निचोड़ा जा रहा है, लेकिन हमें दिया कुछ भी नहीं जा रहा। आपको मैं एक और बहुत बड़ा फसाद बताऊं जिसका जिक्र इस वीडियो में नहीं था। ताजिर जो है उन्होंने बड़ा एका कर लिया है और उनके ऊपर फोर्सफुली ये चीज़ डाली जा रही है। आई थिंक जिक्र हुआ था हल्का फुल्का प्रशांत जी की वीडियो में, उनके ऊपर फोर्सफुली ये चीज़ डाली जा रही है कि आप जो दुकानें हैं ना वो 8:30 बजे बंद कर दो। आप 8:30 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप दुकान खोल कर रखो। अब जो कपड़ों का काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया हमारा बनारसी का काम है, जो कपड़ों का काम करते हैं वो तो बड़ा प्रेशराइज हो गए, वो तो बड़े डिप्रेस्ड हो गए, इतने अपसेट हो गए कि वो रो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतना माल है हमारे पास, अगर हम 8:30 बजे दुकानें बंद करते हैं, नॉर्मली जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, तो ऐसी बात है, आपको पता है मॉल्स का हिसाब किताब, आपको शॉप्स का हिसाब किताब पता है, 3 से 4 बजे लोग आना शुरू करते हैं। अगर 3 से 4 बजे लोग आना शुरू करते हैं और एक ताजिर है या एक शॉपकीपर है वो 8 बजे दुकान बंद कर देता है, 4 घंटे में वो महज क्या कमाएगा, 4 घंटे में वो कितनी बिक्री करेगा। वो कह रहे हैं आप हमें 5 बजे से बोल दो कि हम दुकानें खोलें, लेकिन 5 बजे से हम रात के 12 बजे तक दुकानें खोलेंगे। अब बाकायदा हुकूमत यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें आई हैं वो, और बाकायदा ये जो ताजिर हैं ये बिल्कुल आमने सामने होने वाले। उन्होंने कहा है मर जाएंगे जी जाएंगे, लेकिन हम अपने बिजनेस पे, हम अपनी चीज़ों पर आँच नहीं आने देंगे। हमें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था ना इस कंट्री में हम कर चुके हैं। अब हम इनकी नाजायज़ पाबंदियाँ बिल्कुल नहीं सहेंगे। इतना बलबला और इतना ज़्यादा तैश और इतना ज़्यादा इनके अंदर मुश्तइल हो चुके हैं ये लोग कि बिल्कुल भरे पड़े हुए नहीं होते कि इंसान फटने को तैयार। ये जो ताजिर बरादरान हैं ये बिल्कुल फटने को तैयार है हुकूमत पे। अब मुझे नहीं पता कि क्या करने वाले हैं ये लोग। एका करते हैं, जाहिर बात है ये सब एका करते हैं, एक साथ हो जाते हैं और उसके बाद ये रैलियाँ करेंगे, जलसे करेंगे। ये एक अलग टेंशन है क्योंकि कोई भी इस बात की हक में नहीं कि 8 बजे दुकानें बंद किया। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।